मेरा नाम राम बाबू कश्यप। मेरा नाम तो आलोक है। परमानंद जी। गोविंद नाम है। Yeah, my name is Rishi Jolly. मेरा नाम आशीष कुमार श्रीवास्तव है। I'm Sapna and I'm 27 years old. Hi, I'm Harshad. Yeah, my name is Rishi Jolly. And how old are you? Yeah, 45. Are you from Jaipur? Yeah, I'm from Jaipur. So how long have you been in this craft? I am in this craft from last 7 years, and basically my father into this business from last 40 years. He is a textile designer, so I joined this 7 year back this company, and we are a manufacturer and exporter of this block printed fabric plus apparel and home furnishing articles. Printing or screen printing? No, block print. जैसे बकरू में ब्लू कलर देख के हम लोगों को समझ में आता है कि ये बकरू प्रिंट है और जियोमेट्रिक पैटर्न्स में No, geometrical pattern इधर भी चलता है, but thing is that the design difference, main thing is the design different है. वो design का वहाँ का थोड़ा बड़े बड़े designs होते हैं. The main thing is design, and they are not very multicolor design. So the Bagru block printing is limited to 3-4 colors maximum 4 colors. This design goes up to 8 color, 9 color as per the customer requirement. So we can increase the colors and decrease the block. And that the Sangani block painting, basically the main designs integrated, more and more integrated designs are. The main thing is they are very integrated. The craftsmen they are doing their experience, and they are experienced in the doing the integrated kind of blocks. So they are very professional in doing the integrated type of design. तो संगेरी एक प्लेस है, उसके बाद से क्राफ्ट का नाम हुआ कि कुछ अलग स्टोरी है ये? No, this is actually there's a place, a Sangani paint. This is a place, it's a town, small. Earlier it's a town. The name of printings is the Sangani block print. Bagru is a place, then the block Sangani Bagru print. So either what all products are there? Product lines. So block printed, the product line is a lot of block. It's a depend on the client requirement. So we make a home furnishing articles, apparel, table linen, home linen, all the articles, every kind of articles who are related to they want printed, is a block printed. कैसे कलर यूज होते हैं, मतलब पिगमेंटेड? We are using the pigment color and discharge. Two type of technique we are using for the color making. these steps के लिए क्या wax or not? There is a different kind of the base we prepare. There's a different base discharge. Pigment is a different. Does it require a lot of water for printing? Yeah, obviously a lot of not, because post washing is process is involved, and obviously dyeing and washing post the water is required. But during the process, the printing, the certain limit of the water content, water definitely used, but not lot of water in required the block printing. Did you face some water shortage? No, nothing. It's readily available. It's already the normal water. और रॉ मटेरियल आप लोग कहाँ से लेते हैं, मतलब कपड़ा? So fabric actually we source for the mill directly. So we have a sources like the mill, they are producing the cotton or other fabric in the bulk quantity, we procure from mill directly. कलर? So color is the pigment is the color companies are there, they making the colors and they supplying to us. There's a lot of company in India, they are manufacture the colors and pigments and binders, all the things, so we procure from them. So binders are from there only. Yeah, yes. कॉटन को छोड़ के और क्या क्या फैब्रिक? Any other fabric, jute, linen, net. We are doing all kind of fabric. नेट में भी ब्लॉक प्रिंट? Yeah, everything. Depend on the company to company. Some company is not able to work on this net also. It depend on the what kind of recipe we are using, and we are expertising in a lot of fabric. We are multi. We do block printing in multi type of fabric like cotton, linen, chanderi, silk, pure silk. So there is no limitation of the fabric. So how do you check the color? Like you will be doing one swatch for the company, and after for the production, how do you match that? Yeah, first actually we make the recipe. The first thing is the recipe. We make the recipe, they're testing the recipe on the raw fabric,
and then once the color is finalized, then we stop the recipe on more development, and then immediately use that recipe and note down that recipe on our master diary, and then we start the The quantity also. everything. Recipes, everything we include. So you try to match the See, this is a exact recipe. This is an example of recipe. It's a recipe book. This is a recipe. Yeah. So each color has different. This is a 4 colors. There are 4 recipes there. So every shade 8 colors have different recipes. मेरा नाम तो आलोक है। आलोक कश्यप। मेरा नाम आलोक है। मेरे को 40 ईयर्स हो चुके हैं इसमें, 14 ईयर्स, 14 साल हो गए हैं इसको काम में करते हुए। नहीं, उम्र पूछ रही है। उम्र 28 साल है मेरी। और आपकी फैमिली में कोई इन्वॉल्व है कि आप हैं? नहीं, हम ही लोग इन्वॉल्व हैं। बाकी तो ऐसे देखा जाए तो पूरी फैमिली इसी वर्क में इन्वॉल्व है, हैंड ब्लॉक में। आप जयपुर से हैं कि अलग? नहीं, हम उत्तर प्रदेश से हैं। ये हैं, ये कौन सीखा ब्लॉग? ये ब्लॉग है और मतलब ये डट्टा है, आउटलाइन हो चुकी है इसकी। आप कैसे सीखे हो ये काम? अच्छा, ये वर्किंग कैसे सीखे हैं? मैम यही सीखे हैं जयपुर में ही। नहीं, मेरे फादर्स हैं ना जो, वो ये ब्लॉग बनाते भी हैं। हाँ, या हाँ, मेरा नाम राम बाबू। अच्छा, उम्र करीब 58 की है। कितने साल ये काम करते हैं? मेरी तो मतलब उम्र ही इसी में निकल गई है। इसी में पूरी उम्र निकल गई है। आप ब्लॉग मेकिंग भी करते हैं? हाँ, ब्लॉग मेकिंग कितना साल? अभी इसमें इस लाइन में करीब 5-6 साल हो गए मेरे को आए हुए। और आप छोटा से हाँ, वो अभी नहीं कर। हाँ, बचपन से वो कर रहे लोग यही बनाने का काम। आपका पूरा फैमिली अभी इधर है? फिलहाल अभी तो यही है। सब छोड़ा है। लड़का है मेरा। गोविंद नाम है। उम्र हो गई है 35 साल। इस काम को तो मेरे को 20 साल हो गई। आप इधर से हैं कि जयपुर से हैं कि जयपुर से हम तो ये काम कहाँ से सीखे? यहीं पर सीखा है काम तो। हाँ, इधर सीखा है, सांगनेर में। परमानंद जी। उम्र? उम्र 63। ये करते हुए आपको कितने साल हो? 35। ये आपके फैमिली में भी आप करते थे कि आप नहीं, हमारी फैमिली में तो कोई नहीं करता, हमारे पिताजी करते थे। पिताजी के बाद आप? हाँ, यहाँ पे हमारे हो गए 5-6 साल। 5-6 साल। और कितने बजे स्टार्ट करते थे और कितने बजे एंड करते थे? अब तो 9 बजे आते हैं और 6 बजे तक करते हैं। ये करने के बाद आप अलग से कुछ करते हैं कि यही? नहीं, अब उम्र अब कुछ नहीं। हाँ, यही कर। आपको कुछ अवार्ड्स मिले हैं? नहीं, अवार्ड्स बोल। अच्छा, संजय ब्लॉक प्रिंट में पहले कौन सा कपड़ा यूज करते थे? पहले पहले तो यही चलता था, कपड़ा कॉटन ही छापा। कॉटन। अभी तो अभी भी कॉटन नहीं है, अभी भी कॉटन ही है। ये कॉटन है, बट अब बहुत सारे कपड़े में कर रहे हैं ना आप? हाँ, सिल्क है, टसर सिल्क है, भागलपुरी है, ऐसे सारे छपे हैं। इसमें लाइक जो मोटिव्स है ना, तो कैसे मोटिव यूज करते हैं? फ्लोरल की ज्योमेट्री ज्यादा फ्लावर चलती है। फ्लोरल? हाँ, और ज्योमेट्रिक चलती है, कम चलती है। ये प्रिंटिंग सीजनल है कि पूरा साल में आप करते हैं? पूरा साल में है, और बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, सब में करते हैं। मतलब ये जो प्रिंटिंग है, तो ये कुछ घर में की ये से है कि ये लोग ही पहन सकते हैं, भाई ये लोग ही काम कर सकते हैं, नहीं, कास्ट और कुछ है? नहीं, हमारे में तो नहीं है, सब कर सकते हैं। सब पहनते हैं।
साड़ी जयपुर से हाँ इधर को पूजा वगैरह है कि उसमें सिर्फ ये संघरी प्रिंट ही पहनना पड़ता है ऐसा करके? नहीं नहीं, और भी मिलता है कपड़ा, मार्केट है। ये इसमें लेडीज है काम करने के लिए? हाँ लेडीज बहुत करती है, बहुत करती है, लेकिन यहाँ नहीं कर, हाँ इन इस एरिया में सांगानेर में ही करती है। लेडीज का काम क्या है? ब्लॉक प्रिंटिंग है और वॉशिंग? नहीं नहीं, ब्लॉक प्रिंटिंग करती है। प्रिंट करते हैं, हाँ प्रिंट करती है। वॉशिंग भी करते हैं वो लोग? नहीं Ladies- नहीं ladies नहीं, करते। वॉशिंग नहीं करती। और ब्लॉक मेकिंग करते हैं? नहीं नहीं, ब्लॉक नहीं बनाती है। ब्लॉक सिर्फ मतलब लड़के लोग ही बनाते हाँ लड़के आदमी कौन सा है। है लड़का का काम, कौन सा है लड़की का काम, ऐसा? ये लड़की का तो काम जो मतलब प्रिंटिंग का है वो प्रिंटिंग करती है, और जो लड़के का है जिसका छापा बनाने का है तो छापे बनाता है, ब्लॉक बनाने का। सांगानेर में ज़्यादातर छिपे लोग हैं ना, उसकी हाँ छिपा, उसकी औरतें जो है ना वो छपाई ज़्यादा करती हैं। वो छिपा गोश्त के काम करते हैं। है। कोस्ट, हाँ छिपा कोस्ट। पहले आप लोग जैसे काम करते थे पहले और अभी में बहुत फर्क है। बाहर जा रहे हैं और पहले की जैसी प्रिंटिंग नहीं रही। पहले चलते थे छोटे छोटे इतने इतने छापे, हाँ ब्लॉक चलते थे। अब ब्लॉक बड़ा, अब छोटा तो कोई छापता ही नहीं है, कहता है पहले वो ये बेड मार्बल का बनता, पत्थर का बनता है क्या ये बेड। पत्थर का वो बहुत जमाने हो गए उस बात। उसके बाद यही ऐसे ही बनते हैं ये। हाँ पहले लकड़ी के बनते थे, अब ये लोहे के बनने लग गए, ये वाले लोहे के इधर है ना, सारे लोहे के हैं। और बाकी प्लाई लग जाती है, ये जूट है। हाँ जूट क्यों यूज करते हैं? कलर? नहीं नहीं, वो कलर पकड़ेगा ही नहीं, जूट नहीं है ना, लचक नहीं मिलती है अच्छा आपने में। हाँ हाँ अच्छा जूट। उसके बाद क्या क्या यूज करते हैं? जूट के बाद में ये है कपड़ा लगा हुआ है, ठीक है, कौन सा कपड़ा है? ये कॉटन है, कॉटन। लट्ठा, कॉटन लट्ठा। कितने लेयर किए हैं आप लोग? ये करीबन ये है ना पूरा, करीबन क्या हाँ इसका 100-150 मीटर लग जाता है। 150 मीटर 150 150 इसका हाइट है। ये कितना है? ये साड़ी ये 63 इंच है, 63 इंच क्या? यानी 1.25 मीटर। हाँ 100 मीटर। Hi, I'm Harshit and my age is 25. I co-own Joshua with my sister, and I did my bachelor's degree from IICD in textile design. So, talking about the clients that we have a very interesting journey when we talk about our clients. So initially, we started off. When we started off Joshua, the whole aim to cater to people was brands who are very design oriented in block printing, who want to explore block printing and who want quality driven work in block printing. So initially we got really like minded clients, and now that the clients that we are working with are all the clients that are doing like top notch quality work in block printing in India and abroad. So I'll tell you some of the names that we have worked with and that we are working with. First goes Anavila. Then we are working with Hamraha. We are working with Amrud India. We are working with Jodi Life. We are talking about in the US. We are working for Rizuta Seth. We are doing a lot of work with Rizuta Seth. Then in domestic, we have done work for House of Wandering Silks as well. So there are a lot of clients we have been working on and off, and our target is to like provide quality driven block printing to people who want to like uplift this craft, uplift good quality craft rather than just mass producing it with an average quality. So since I have a good design, since I did my textile design, I have a very good design knowledge as in how to make a print block print friendly. So basically when we get the designs from our clients, they obviously don't
know um, like they don't know the small details that we need to keep in mind while making the design for block printing. When we receive the designs from the client, we sit with our master artisan who prints the fabric, our master artisan who makes the blocks, who carves the blocks, and we discuss what all things are possible in block printing. So of course we have some challenges that we come over through with different techniques here and there. So we have adapted some a lot of interesting designs into the traditional craft that has been practiced. I'll give you an example. A client of ours, so my sister is a print designer as well, and she designs prints. So she designed a print for a client called Amrud India, in which the repeat size was of 17 inches, and it is a puzzle of 78 blocks in 22 colors, which generally you won't see in block print happening in block printing. So if we get a challenge, we take it through and look onto how what are the possible ways to like take this challenge forward and take it to production. So yes, we adapt designs according to the craft, we make some changes and then do it. I'm Sapna and I'm 27 years old. I did my graduation from Delhi University in life sciences actually, and designing was not really my forte, but I entered into this industry while working with another studio. So this is how I was always interested in art and painting and all of those sort of things, but then yeah, I just entered this industry by chance. It was not planned. I used to conduct a lot of art related workshops before COVID hit. And during COVID, Harshit and I were just getting bored and we thought that what do we like, can we do something about it? So Harshit had the textile knowledge and I had the experience of conducting workshops. So we curated a kit, a block printing authentic kit, which had all the materials and in smaller version basically, and one could print a shirt out of the textile pigments, blocks, and everything that we sent along with the kit. So it started with conducting workshops. Then Harshit saw while one of his internships that there is a huge gap in the market and the printers don't really, you know, they just don't entertain designers and artists when it comes to quantities or exploration or adjusting colors and things like that. So he decided that okay, we can bring something, we can provide a space where designers and artists can truly explore the craft and take it forward, because uh, we feel that normally the craft is doing very well, it's thriving, but good quality craft is dying. So we had that vision in mind that we'll also try to do something new with the craft, along with keeping the basics of the craft intact. So while setting up the tray, we will keep less number of layers of the fabric so that more color passes on through it. Market. Law. मेरे ख्याल से तो ये अपने यहाँ ही होता होगा। हाँ, मेरा नाम आशीष कुमार श्रीवास्तव है। एज, 34। एक्सपीरियंस। हाँ, जब मैंने 12th पास की थी तब मैं 2008 में था। 2008 में 12th पास की, उसके बाद से मैंने काम सीखना स्टार्ट किया था। तो तकरीबन 16 या 17 2028 में मुझे पूरे 20 साल हो जाएंगे। Is it trained or passed out? नो, मैंने जब 12th पास की थी तब मेरे पास में ये काम होता था ब्लॉक प्रिंटिंग का। तो मैं मतलब मुझे अच्छा लगता था ब्लॉक प्रिंटिंग, कलर्स और ब्लॉक सब देख के। तो मेरे पास में ये जो लोग सीखते थे तो मैंने पहले उनके साथ में जाना स्टार्ट किया। फिर उन्होंने धीरे धीरे मुझे मतलब इसके बारे में, इस आर्ट के बारे में नॉलेज देना स्टार्ट किया। तो मैंने वही 1 या 2 साल के अंदर मैंने मतलब काम सीखते सीखते यहाँ तक हो गया कि हाँ मैं ठीक है, मैं काम कर सकता हूँ। लेकिन ब्लॉक प्रिंटिंग के एक ऐसा आर्ट है कि आप ये कभी नहीं कह सकते कि आपने ये काम सीख लिया है, आपको ज़िंदगी भर सीखना पड़ता है। तो हम सभी एक तरह से स्टूडेंट है जो अभी भी नए नए मतलब सीखते ही रहते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ हम कि सब कुछ सीख सकें।
एक अच्छा आर्टिजन वही होता है जो जिंदगी में सीखता रहे। अगर कोई भी आर्टिस्ट ये कहता है कि मैंने सब कुछ सीख लिया तो वो एक आर्टिस्ट नहीं है मेरी नज़र में। क्या आपका वर्क शेड्यूल कैसे है? हम लोग वैसे आमतौर पे हम लोग 9 बजे आते हैं और शाम को 6 बजे तक काम करते हैं, जिसमें लंच होता है। तो यही शेड्यूल जो है शायद वो 365 दिन तो हम लोग नहीं कहते, लेकिन हाँ महीने में पूरे महीने यही शेड्यूल होता है। अलग काम भी है? अलग, हाँ ऐसा है कि मेरे जो फैमिली में है वो यही काम करते हैं। मेरे जो ग्रैंडफादर थे, मतलब मेरे दादाजी थे, वो ब्लॉग बनाते थे। मेरे पापा भी ब्लॉग मेकर हैं। मैं और मेरे ताऊजी थे वो ब्लॉग प्रिंटिंग में इन्वॉल्व थे। तो मतलब मेरे घर में दादाजी, पापा और मेरा भाई, वो ये तीनों ब्लॉग मेकर हैं और मैं और मेरे ताऊजी हैं वो ब्लॉग प्रिंटिंग से मतलब रिलेट करते हैं। Do you think there is a need for skill upgradation? हाँ, मतलब ऐसा है कि इस टाइम जो आर्टिजन आ रहे हैं ना, उनके पास वो स्किल को नहीं देख रहे इतना ज़्यादा। वो लोग क्या देखते हैं कि हम कितनी जल्दी पैसा कमाने लग जाए इसमें, इस आर्ट से, मतलब कि कितनी जल्दी हम लोग अर्निंग स्टार्ट कर दें। तो क्या होता है कि जब कोई भी बंदा एक आर्ट को एज अ अर्निंग सोर्स लेता है, और आर्ट को आर्ट की तरह से देखना चाहिए। ठीक है, पैसा भी बहुत जरूरी है, पैसा कमाना सबसे जरूरी है, लेकिन आर्ट और पैसा कमाने में थोड़ा फर्क होता है। अगर आप एक अच्छे लेवल के आर्टिस्ट बनते हैं तो पैसा अपने आप आएगा, लेकिन अगर आपके पास उस आर्ट की नॉलेज कम है तो आप पैसा तो कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग रन में आपकी वो वैल्यू नहीं रहेगी जो एक ट्रू आर्टिस्ट की वैल्यू रहती है मेरे हिसाब से। मतलब मेरे हिसाब से मैं ये कहता हूँ कि पैसा जरूरी है, लेकिन जब आप किसी भी आर्ट में इन डीप चले जाते हो ना, तब फिर पैसा भी अपने आप आता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि इस समय बहुत से लोग जो लोग सीख रहे हैं ना, वैसे पहले तो इस काम को कोई सीख ही नहीं रहा जल्दी। बहुत आर्टिजन जो अच्छे ना वो बहुत कम होते जा रहे हैं, बहुत ही कम, रेयर होगा। अब हमारे यहाँ मतलब है जो हम लोग तो सिखाते भी हैं संघ में, जो हमारे संघ में काम करते हैं, अगर वो हमसे कम है तो हम उनकी जो भी समस्या या जो भी वो लोग मतलब इससे रिलेटेड कुछ फेस करते हैं तो हम लोग उनकी हेल्प करते हैं। तो धीरे धीरे वही नॉलेज देने से उनको भी नॉलेज बढ़ेगा, तो वो भी एक दिन अच्छे आर्टिस्ट बन जाएंगे। आपको कुछ अवार्ड्स और रिकॉग्निशन मिला? और मैडम सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि आर्टिजनों को कभी कोई जल्दी अवार्ड नहीं मिलता है। अवार्ड उनको मिलता है जो जिनके लिए हम लोग काम करते हैं ना, उनको अवार्ड मिलता है, लेकिन हमको कभी अवार्ड नहीं मिलता है। आपका पापा और उसको किसी को अवार्ड, फिलहाल ऐसा होता है कि आर्टिजन क्षेत्र में जो काम करते हैं ये लोग क्या करते हैं, ये लोग काम करते हैं पैसे के लिए। तो अब जैसे कोई भी बंदा होगा वो क्या करता है कि इनसे उन्होंने काम करवाया, उसके बदले उनको पैसे मिल गए, बस वहां पे उनका काम खत्म हो गया। और फिर इनके पास इतनी सोर्स भी नहीं होता है, और ना ही इनके पास में इतनी नॉलेज होती है, और ना ही कोई ऐसा बंदा मिलता है जो इनको उस मतलब आर्टिजन क्षेत्र में जो इनको नॉलेज है वो उनको प्रोवाइड करा सके। जब किसी चीज़ की किसी को कोई नॉलेज ही नहीं होगा तो ना तो वो उसका फ़ायदा उठा सकता है और ना ही कुछ उसको फ़ायदा मिलता है। तो मेरे ख्याल से तो अवार्ड फिलहाल मैंने कभी अप्लाई भी नहीं किया है, क्योंकि मुझे पहला तो हो सकता है कि अब कुछ बोलूँगा तो थोड़ा अजीब हो जाएगा, लेकिन सपोर्ट नहीं मिलता हमको आगे से। तो जब सपोर्ट नहीं मिलेगा तो बिना सपोर्ट के तो कुछ होता नहीं है। और जो जिनके लिए हम लोग काम करते हैं उनके सोर्स भी होते हैं, उनको सपोर्ट भी हर तक मिलता है। तो जो हो सकता है कि जो ब्लॉग पकड़ना नहीं जानता हो, लेकिन उसके पास हो सकता है अवार्ड हो कि बेस्ट ब्लॉग प्रिंटिंग का अवार्ड हो, उसके पास में नेशनल अवार्ड मिलता है ऐसे बहुतों को जो शायद काम करवाते हैं। लेकिन आर्टिजन को मिलना चाहिए ना, मेरे ख्याल से डिजर्व तो आर्टिजन करता है ना, वो आपके लिए काम कर रहा है, आप खुद काम नहीं कर रहे हो, आर्टिजन आपके लिए काम कर रहा है और उस काम का नेम फेम आपको मिल रहा है। तो ये मेरे ख्याल से तो अनफेयर है, सही नहीं है। आर्टिजन को मिलना चाहिए, मेरे ख्याल से जो चीज़ आर्टिजन के लिए वो आर्टिजन के लिए ही होनी चाहिए। यहाँ पे काम क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पैसे तो सब जगह मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्यों काम कर रहा हूँ कि हर्षित भैया और सोनम मैडम है ना, ये क्या है, सपोर्टिव है। मतलब ये लोग सोचते हैं कि हम लोग आगे बढ़े, कैसे बढ़े। अब फिलहाल हो सकता है आगे हम इनके पास भी कई सारी जो मतलब कुछ समस्या होती है जिसकी वजह से ये जो करते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये जो चाहते हैं कि जो आर्टिजन काम करता है वो आगे बढ़े, कैसे बढ़े उसके लिए भी सोचते हैं। और ये तो खुद कहते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि अगर आर्टिजन बढ़ता है और ये आर्ट बढ़ती तो उससे ज़्यादा खुशी इनको होगी। तो ये हर कोई नहीं सोचता है। तो हम लोग इसलिए संघ में और काम करते हैं। काम तो हम कहीं भी कर सकते हैं, पैसा तो मुझे कहीं भी मिल जाएगा, हो सकता है यहाँ से ज़्यादा मिले पैसा, लेकिन सपोर्टिव जो स्टाफ होता है ना वो नहीं होता है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है, इसलिए मैं यहाँ पे और काम कर रहा हूँ। नो, वी डोंट बिलोव एनी NGO। हम लोग मतलब सिंगल ही होते हैं जो खुद से ही काम करते हैं, खुद से ही काम ढूंढते हैं। NGO फिलहाल मुझे लगता भी नहीं कि कोई NGO होगा जो आर्टिजन के साथ में मिलकर काम करता होगा। NGO केवल अपने लिए काम करते हो मेरे हिसाब से। मुझे नहीं लगता कि कोई NGO कभी आगे से आके किसी आर्टिजन को अप्रोच करता हो कि आपको कोई दिक्कत है, हम आपकी हेल्प करते हैं।
कोई नहीं करता। सबको गवर्नमेंट से जो भी ऐड मिलता होगा या जो भी मिलता है वो उनके पास आता है, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं लगता। अगर एनजीओ जितने भी लोग एनजीओ है अगर वो सही से काम करे, जिम्मेदारी के साथ काम करे, तो किसी भी आर्टिजन को कभी कोई दिक्कत नहीं हो। जब एक आर्टिजन जब तक काम करता है तब तक ही उसको पैसे मिलते हैं। अगर कल किसी आर्टिजन में कुछ भी गलत होता है ना, तो उसके पास ना तो 1 रुपया कमाने का जरिया है, ना तो कोई एनजीओ सपोर्ट करेगा, ना उसके घर वाले सपोर्ट करेंगे। आर्टिजन जिस आर्टिजन ने अपना पूरा जिंदगी किसी आर्ट को दे दी, जब वो काम छोड़ता है या जब वो एक एज के बाद हर कोई रिटायर होता है भाई, कोई भी आदमी जिंदगी भर तो काम नहीं कर सकता है। जब बंदा एक आर्टिजन रिटायर होता है ना, तो उसके बाद उसके पास अर्निंग का कोई सोर्स नहीं होता, ना तो कोई एनजीओ सपोर्ट करता है ना कोई सपोर्ट करता है। तो ये करना चाहिए ना। अब ये कौन उठाएगा? ये एनजीओ वाले ही कर सकते हैं, लेकिन किसी एनजीओ को फर्क नहीं पड़ता भाई। उनका जो काम होता है उन्होंने एनजीओ खोल लिया, उनका जो काम है वो काम हो रहा है, उनको आर्टिजन से क्या मतलब। पहले आपका घर में कौन सा वाला डाई यूज किया? नहीं, हम लोग डाई यूज कौन करते हैं? पिगमेंट? नहीं, वो ऐसा था पहले, पिगमेंट ही चलता था। पिगमेंट हो गया, रैपिड हो गया और डिस्चार्ज हो गया, 2-3 तरह के होते थे। लेकिन पिगमेंट जो है ना वो सबसे बढ़िया है। ये क्या है, एक तो पानी को मतलब खराब नहीं करता है, और ऐसा होता है कि कई जगह पानी का सबसे बड़ा इशू होता है। सारी जगह के पानी में हम पिगमेंट कलर, सारी जगह के पानी में हम पिगमेंट कलर बना के, वो जो चमक का होता है ना, मतलब कलर जो ब्राइट खिलता है, वो उसका इफेक्ट पड़ता है। सब जगह हम रैपिड भी नहीं कर सकते सब जगह, क्योंकि जहाँ पर पानी खारा होगा ना, वहाँ पे मेरे को लगता है थोड़ा बहुत इशू आता है कलर बनाने में। तो पानी बहुत मैटर करता है। जहाँ पे पीएच एक होता है, पीएच लेवल पानी का, तो शायद 7.5 या 7 के आसपास होता है। तो जहाँ पर इस लेवल का पानी होगा वहाँ पे काफ़ी अच्छा मतलब कलर में और इन सब में अच्छा मतलब चमक आता है। तो पिगमेंट ही मेरे ख्याल से जहाँ तक पहले यूज़ होता था, पिगमेंट खड़ी यही था। तो जो आपको वो दिखाया था ट्रे, उसको तरी बोलते हैं, और जो उसके ऊपर दिखाया था आयरन वाली और जो नायलॉन वाली, उसको बोलते हैं ठाठी। और उसके साथ में एक प्लास्टिक कितनी बड़ी आती है, उसको बोलते हैं थापी। हाँ, कलर मतलब एकदम इक्वल करते हैं उस पर। और जोटा, जो जूट का बना होता है उसको जोटा बोलते हैं। और फिर हम लोग सिफोन, जाली और कॉटन की इसके ऊपर परत लगाते हैं अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन की। हमको डिज़ाइन के हिसाब से कैसा मतलब चाहिए, हमको कलर कितना चाहिए, तो हम लोग यही 4-5 चीज़ें होती है जो हम लोग। और फिर वो हमारी गाड़ी होती है जो 4 पहिए की होती है, 4 व्हीलर, यही होता है। Commonly used traditional motifs पहले? पहले मतलब इसका मोटिव क्या था? हाँ, कि हम लोग क्यों ब्लॉक प्रिंट करते हैं? हाँ, बूटा बूटी। हाँ हाँ हाँ, बूटा बूटी तो अभी चलता है, लेकिन ऐसा है कि हर एक जगह का अपना एक मतलब अलग स्टाइल होता है। जैसे यहाँ पे एक लॉन्ग बूटी होती थी जो बहुत बारीक होती थी, और वो घाघरे में यूज़ की जाती थी, घाघरे में, बेडशीट में। तो अब जैसे वहाँ पर बनारस में था, वहाँ पे सिल्क के लिए, साड़ी के लिए अलग तरह से यूज़ किया जाता है। तो ये जहाँ पे ब्लॉक प्रिंटिंग हो रही है उसके अकॉर्डिंग वो लोग, जैसे बाग की है या और कई जगह की है, तो हर जगह का एक अलग अलग मतलब स्पेशलिस्ट होते हैं जिसमें वो लोग काफ़ी माहिर होते हैं। तो हर जगह का एक अलग अलग होता है। किसी कोई साड़ी में माहिर है, कोई घाघरा या कपड़ों में माहिर है, कोई बेडशीट में माहिर है। तो हर जगह का एक अलग सिस्टम होता है। ऐसे देखो, ऐसा होता है कि नीम और हम लोग वैसे अधिकतर जो अच्छी चीज़ होती है वो शीशम पे बनती है, क्योंकि वो लंबे समय तक चलती है। अगर आप शीशम को पे ब्लॉक बना के उसको तेल में डाल देते हो तो 10 साल 15 साल चल जाता है आराम से, अगर अच्छे से केयर करते हो तो। नीम की लकड़ी क्या होती है, ये फटने का डर रहता है इनमें। जैसे ही मौसम चेंज होता है, गर्मी बढ़ती है, तो ये फट जाती है, लेकिन शीशम नहीं फटेगी। अब जैसे जामुन की लकड़ी हो गई, तो जामुन क्या होता है कि ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। आपने देखा हो पहले कुओं में जो नीचे डालते थे वो जामुन की लकड़ी का यूज़ करते थे ना। क्यों करते थे? क्योंकि वो पानी के लिए मतलब उस पर पानी का कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता। नाव भी इसी की बनती थी, तो पहले कई लोग जामुन की लकड़ी भी बनाते थे। तो और चांदनी एक लकड़ी होती है, चांदनी, जो हल्की होती है काफ़ी वेट में, क्योंकि ब्लॉक अगर ज़्यादा हैवी होगा तो कारीगर को काम करने में दिक्कत होती है। तो हम लोग जो फिलर्स होते हैं ना, वो हम लोग बनाते हैं हल्की लकड़ी पे, और जो रेक होती है वो हम लोग बनाते हैं शीशम पे, क्योंकि हमको रेक महंगी पड़ती है। तो रेक हमको लंबी टाइम चलानी है, फिलर सस्ते पड़ते तो वो तुम 2-4 बार कितनी बार बना लो, लेकिन रेक हमारी मेन होता है। और रेक में क्या होता है कई बार कि एक रेक होती है जो पीतल की बनती है। देखा आपने पीतल की रेक? देखी आपने? क्या बोलते हैं, ब्रास? हाँ, ब्रास की रेक जो बनती है वो भी बनती है, लेकिन ब्रास के कारीगर कम मिलते हैं। ऑयल में कौन सी ऑयल में? सरसों का। इसमें सारे लोग ही काम करते हैं,
हिंदू मुसलमान इसका कोई कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपको इसमें एक अच्छी मतलब एक नई बात बताता हूँ कि ब्लॉक प्रिंटिंग वही कर सकता है जो राइट हैंडेड हो। लेफ्ट हैंडेड जो होते हैं वो ब्लॉक प्रिंटिंग नहीं कर सकते। इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है, रिलीजियस और वो जो है वो इसमें कुछ मैटर नहीं करता। हमारे यहाँ जो मोमडन लोग हैं वो भी काम करते हैं, वो दोस्त भी होते हैं हमारे लिए अच्छे, और हिंदू तो ही हम लोग जो भी हैं। लेकिन इसमें जो आपको एक बात बताऊँ कि ब्लॉक प्रिंटिंग केवल राइट हैंडेड बंदा होगा वो ही कर सकता है। लेफ्ट हैंडेड बंदा जो होता है वो इसमें काम नहीं कर सकता है। तो अगर आपको ब्लॉक प्रिंटिंग करनी है तो आपको राइट हैंड होना बहुत ज़रूरी है। के लिए थोड़ा सा बताओ क्लाइमेट का हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गया। ऐसा होता है कि जब गर्मी पड़ती है तब कलर जो होते हैं वो काफ़ी चमकीले और ब्राइट आते हैं, और जब रेनी सीजन आता है तो मॉइस्चर होता है हवा में सब जगह, तो उससे क्या होता है कि कलर जो होते हैं ना वो डल पड़ जाते हैं। और सर्दियों में जब फॉग पड़ता है या वो कुछ होता है तब और कलर डल पड़ जाते हैं। बाकी ब्लॉक पेंटिंग के लिए जब धूप अच्छी निकली हुई होती है ना, सबसे अच्छा मतलब सीज़न वही होता है। अभी अभी सीज़न ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं है, बरसात नहीं हुई यहाँ पर, लेकिन अगर थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है ना तो थोड़ा काम में दिक्कत आती है। सांगनेरी में पुराना कौन सा है मतलब background कलर कौन कैसा सा है? ज़्यादा पुराने टाइम में कौन से तक, ब्लैक, रेड, ब्लू, ग्रीन, ये 4। हाँ अधिकतर के ऊपर नहीं होता ना, व्हाइट एंड रेड में। वाइट एंड ऐसा होता है कि पहले यहाँ पर जो है ना नेचुरल कलर यूज़ किए जाते थे, तो नेचुरल कलर में रेड, ब्लैक, और ब्लैक पहले बहुत छपता था, रेड बहुत होता है, ग्रीन बहुत होता है। ये जो बेसिक कलर होते हैं ना पहले वो ही चलते थे ज़्यादातर। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, हो सकता है कि मेरे नॉलेज के बाहर भी कुछ हो, सब चीज़ तो मुझे पता नहीं हो सकती ना, मैं भी एक इंसान ही हूँ। हाँ, थोड़ा फर्क है। बगरू जो है ना वो एक स्पेशल से इंडिगो के लिए एक पूरा डेडिकेशन उसको वहाँ पे। सांगानेर ऐसा है कि सांगानेर में आपको हर चीज़ मिलेगी, बगरू भी मतलब वो आप बताए थे क्या, वो भी मिलेगा, सब कुछ मिलता है यहाँ पर। आपको क्या चाहिए, यहाँ पे सबकी डिमांड पूरी रहती है, बस आप आगे से ऑर्डर तो करो। ब्लॉक प्रिंटिंग है ना, सांगनेरी ब्लॉक प्रिंटिंग का जेंडर रेशियो फीमेल कितना? हाँ, ऐसा है कि पहले काफ़ी सारी जो औरतें लेडीज़ थी वो इसमें काम करती थी। अभी मैं कुछ को जानता भी हूँ जो ब्लॉक पेंटिंग करती हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी एज होती है तो वो आज से पहले वो रिटायर हो जाती है, क्योंकि उनके घर में किसी बच्चे की शादी होगी तो फिर कहेंगे मम्मी कहाँ जा रही हो, आप बच्चों को देखो, काम तो हम लोग कर ही रहे हैं ना। तो हाँ, इसमें करती हैं, लेडीज़ भी काम करती हैं, और वो मेरे ख्याल से आदमी से अच्छा करती हैं। आज मैन से अच्छा वुमेन्स करती हैं ब्लॉक प्रिंटिंग। तो मेकिंग में सिर्फ मैन ही हाँ, करते हैं ना? नहीं, मैकिंग में भी वुमेन्स है, लेकिन वो आपको फर्क आज देखने को मिलेगा, यहाँ नहीं देखने को मिलेगा। नहीं, इतना महंगा है, हम्म। बट इसको बनाने में जो प्रोसेस है, हाँ, हार्ड वर्क है, वो नहीं दिखता है। ऐस देखो मेन बात, जब ये बात आपकी सही है, हार्ड वर्क किसी नहीं होता, बंदा बनाएगा तो उसके ऊपर उसकी फैमिली डिपेंडेंट है, उसके बच्चे, तो भाई बंदे को थोड़ा बहुत तो दो यार, ताकि वो बच्चों को अपने कमा के खिला सके सही से। मैंने क्लस्टर में गया है तो उधर भी ये मेरे हिसाब से सांग के इस टाइम जो करंट सिचुएशन है वो ये है कि आर्टिजन तो बहुत सारे हैं लेकिन अच्छे आर्टिजन कम है, और काम इसमें कम लोग सीख रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ कि काम लोग सीखें, क्योंकि डिग्री से अच्छा आपके पास हुनर होना बहुत ज़रूरी है, स्किल होना। डिग्री नॉट इम्पोर्टेंट, स्किल इज मोर इम्पोर्टेंट। 2000 में सांगनेर आया था, और इस टाइम में क्या क्या है? जब मैं 2000 में आया था तो पहले तो मैंने काम सीख कर, तो मैं छोटा ही था, 10 साल का था, मैं 10-11 साल का होगा तब। मैंने 5 साल में, वो 8 साल में मैंने पूरी 12th क्लियर कर ली अपनी, मतलब 5, 6, 7, 8, 9, 12, 6 ईयर में मैंने पूरी पढ़ाई कंप्लीट करके फिर मैंने काम सीखना स्टार्ट कर दिया। तो उस टाइम जो काम होता था वो ज़्यादा अच्छा होता था। अब तो क्या प्रोडक्शन, काम की वैल्यू ज़ीरो हो रही है, अच्छे आर्टिजन की वैल्यू ज़ीरो हो रही है, बस केवल जो अच्छा प्रोडक्शन दे सकता है उसी की वैल्यू है।